Hello to all the student of MCOM second year. I am Professor Sonia Digwa from SSGM College. Today I welcome to all of you student in my online lecture. So first of all we have taken second year A group subject will be specialized auditing. Today I am teaching you in specialized auditing chapter number 4th. So chapter number 4th will be dependent on audit of cooperative society. So in last lecture we have started this chapter. In last lecture we have take on Google Meet. Okay, so in Google Meet we have discovered the point is like introduction. So in introduction we have to discuss like what is meant by cooperative society and why the cooperative society have make an impact on our GDP or in our growth of country. So cooperative society is nothing but and that society which have providing service to their member, and the main motive of cooperative society is to making an society and safety and insurance to their particular member and providing service to their members. And the main motive of cooperative society is to not earn profit with their customer or members who will be registered under cooperative society. Okay, so this we have discussed in last lecture. We have also covered the why tax auditing, whether we making auditor have making an audit of cooperative society. So housing cooperative society will be not more than 1 crore turnover, whether they have to develop their or reconstruction of the cooperative society, and that tax audit will not been undertaken under section 44 AB. Okay, so on last lecture we have also discussed the meaning of cooperative society. Definition I have tell you okay, that the two definition which have been described. First of all the author, and second will be there will be two definition will be have to discovered by under section. First definition will be discovered under section 4 of the Indian Cooperative Society Act, and second will be according to Calvert. The Calvert is an author which describe their point of view regarding the cooperative society. And also we have discussed the special features of cooperative society. So why the cooperative society is required and what kind of resources, whether we have speaker features, whether we auditor have making an audit of cooperative society, so what kind of resources or application special features means characteristic also we called. So whether the auditor have making an audit of cooperative society, so they have required certain important aspect, and they have to whether analyzing balance sheet and profit and loss account. So in last lecture we have discussed first the examination of overdue. We have also completed overdue interest rate. Third, certification of bad debts, and fourth will be valuation of assets and liability. So on special features of cooperative society, so we have covered 4 points. Now we move forward to the next point of special features of cooperative society will be adherence to the cooperative principle. Adherence to the cooperative principle means whether the auditor have an making an audit of cooperative society, so they have to follow all the rules and regulation principle to follow whether they have making an auditing. ओके तो जैसे हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव अलग अलग है. बिजनेस कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. बिजनेस का कंपनीज का इनका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विद देयर कस्टमर. और उनका मेन क्या उद्देश्य रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें अपनी कंपनी, और वो कंपनी का प्रॉफिट दे हैव टू मेकिंग एंड कंपनीज पोजीशन. अगर कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहेगा कस्टमर से, उनका मोटिव रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके प्रॉफिट कस्टमर के थ्रू. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मोटिव रहा है, उद्देश्य प्रिंसिपल रहा है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू नॉट अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट विद देयर कस्टमर. वो उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर से प्रॉफिट ना अर्न कर सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करे
अपने कस्टमर्स को उनके जो प्रॉफिट अर्न है, जो अगर प्रॉफिट ज़्यादा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अर्न भी कर रही है तो वो पर्टिकुलरली अपने मेंबर्स को जो हैं उनके मेंबर्स और कस्टमर हैं उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे। तो उनका मेन व्यू पॉइंट क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, टू प्रोवाइड अ स्पेशल बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर। अगर जैसे बहुत सारी विविध प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ओके, तो वो प्रोडक्ट जब सेल करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि कस्टमर को लोअर प्राइस में वो प्रोडक्ट सेल करे, ओके, ताकि वो यानी कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा कम मार्जिन में कम रेट से वो परचेज़ कर सके। तो उनका ये है ताकि वो ये इफ़िशेंसी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट कम मार्जिन में सेल करते हैं ताकि उनका कस्टमर हर एक कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज़ कर सके। तो इसी के लिए जब हम लोग उसकी कोऑपरेटिव, तो अभी वो लोग क्या है एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जब हम लोग इनकी अकाउंटिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी मेथड यूज़ करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलो करती है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स है, स्टोर कंट्रोल मेथड है, टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल शुड बी अडॉप्टेड। तो इसी के लिए ये सारी मेथड अडॉप्ट करते हैं वेदर दे हैव टू फोकस ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। जब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली करते हैं तो ये सारी मेथड दे हैव टू ऑडिटर हैज़ बीन यूज। और मॉडर्न टेक्निक, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना गोल, अपना टारगेट अचीव करना रहता है कि हाँ दे हैव टू फोकस ऑन देयर टारगेट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टारगेट क्या रहता है, टू नॉट अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर अपने उन्हें ये अपना गोल अचीव करना है तो वो आजकल की मॉडर्न एप्लीकेशंस को फॉलो अप ना करके वो पुराने फोकस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पुराने एप्लीकेशंस को यूज़ करें और नॉट मेकिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल और ऑडिटिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो इन दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस कि जो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोग ऑडिटिंग करते हैं तो ऑडिटर को जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है उसी के टूवर्ड्स ऑडिटिंग सेटअप करनी है, गोल्स को अचीव करना है और उसी के अंतर्गत ऑडिटिंग अपनी करनी है और काम करना है। और जो अननेसेसरी प्रॉफिट है उसको एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स और वो प्रॉफिट मेंबर और कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी special features. Point will be 6 point observation of the provisions of the act and rules. ओके, सो जब ऑडिटर ऑडिट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो ऑडिटर को सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड कब है, उसके कौन से प्रोविज़न के तहत और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कोऑपरेटिव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंतर्गत कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं बाय लॉस, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रजिस्टर करे हैं अंडर बाय द लॉ एंड पर्टिकुलर स्टेट अगर ऑडिटिंग करता है तो उसी के पर्टिकुलर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉज प्रोविजन के अंतर्गत ऑडिटर को ऑडिटिंग करनी है। अगर ऑडिटर कोई भी इरेगुलरिटी फाइंड आउट कर रहा है अपनी ऑडिटिंग में, सो इमिडिएटली वो नेक्स्ट लेवल पे उसको एनालाइज करके उसको रिकवर करेगा कि हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये सिस्टम रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, सो दे हैव टू फोकस एंड ऑटोमेटिकली दे हैव टू रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर वो ऑडिटर कुछ भी इरेगुलरिटी फाइंड आउट करता है वेदर दे मेकिंग ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव society, so they have to immediately report to the next level of authority like top level management of the cooperative society. Okay, so the auditor has to focus all the rules and regulation and observe all the thing whether they have making an auditing of cooperative society. Okay, so next point will be verification of members register and examination of their पासबुक। ओके, सो जब हम एग्जामाइन करते हैं रूरल एरियाज़ की, हम क्रेडिट सोसाइटी मतलब रूरल एरियाज़ की हम ऑडिट करते हैं पर्टिकुलरली, तो वहाँ के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे रहते हैं रूरल एरिया के जो
इलिटरेट का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं रहते। तो ऑडिटर को उनकी पर्टिकुलर मेंबर की पासबुक को रजिस्टर करना, वेरीफाई करना, उसका जो लोन अमाउंट है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ग्रांट करना, रीपेमेंट किस तरीके का है वो प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। और कस्टमर को ये सारी डिटेल्स ऑडिटर प्रॉपरली क्लासीफाई करता है कि हाँ दैट पर्सन पर्टिकुलरली will be illiterate, so their rules and regulation, their accounts register, form, amount, loan granted, repayments of that, so that thing will be ensured। तो जब इस चीज़ के एनालाइज करता है, अकाउंटिंग करता है, उनकी बुक्स को ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है जब ऑडिटर, तो ये सारी चीज़ों को ऑडिटर एनालाइज करता है दैट सम पर्सन इफ हैव बीन इलिटरेट, सो द ऑडिटर विल बी प्रॉपरली यूटिलाइज दैट हाउ मेनी पर्सन who have taken a loan from cooperative society, how many person will be literate, how many person will be not replied, so auditor will be issued that particular passbook of that particular person which have been illiterate, whether they have taken a loan granted from the cooperative society। so ये मैनिपुलेशन के इनके अकाउंट्स में डायरेक्टली फ्री फ्रॉम ऑडिटिंग होती है। सो ऑडिटर ये सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा और ये प्रॉपरली इन सारे मैटर को रिस्टोर्ड करेगा, चेक करेगा, और अपने जो उसका जजमेंट है ऑडिटिंग का कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये प्रॉपर अपना जजमेंट, अपना रिव्यू देगा और सेफ गार्ड करेगा कि हाँ इनकी ऑडिटिंग और इनकी बुक्स में एंट्री प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑडिटर पूरी तरीके से वेरीफाई करेगा। ओके, सो फ्रॉम द रूरल एग्रीकल्चर सोसाइटी, ओके, क्रेडिट सोसाइटी की। The next point will be audit classification of society। audit classification of society में ऑडिटर अपना प्रॉपरली सारे अकाउंट्स को क्लासीफाई करके, जो सोसाइटी के अकाउंट्स है प्रॉपरली उनको यूटिलाइज करके, प्रॉपर जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद वो ऑडिटिंग करता है। ओके और उस बेसिस पे ऑडिट उनका पूरा अकाउंट्स को क्लासीफाई करता है कि हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की परफॉर्मेंस इस साल की कैसी थी, क्या है। तो इसी के बेसिस पे ऑडिटर अपना जजमेंट देता है, अपना रिव्यू देता है, अपना फिक्स रिव्यू क्राइटेरिया एनालाइज करता है, रजिस्टर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और केयरफुली अपने हर एक पॉइंट को डिस्कवर करता है, डिसीजन देता है। इफ़ दे हैव एनालाइजिंग कि हाँ कोई फ्रॉड हो रहा है, एरियर हो रहा है, मिस्टेकनली मैनेजमेंट अपना काम सही तरीके से नहीं एनालाइज कर रही है, मैनेजमेंट हैज़ नॉट सेटिस्फाई बाय द अवार्ड ही मेकिंग। सो ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली रजिस्टर करना और डायरेक्टली रिव्यू करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको डायरेक्टली रजिस्टर रिव्यू करने को ऑडिट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना, कंपनी के सारे जो डेट्स हैं कि फ़िक्स अमाउंट कौन से हैं, सेल्स अमाउंट्स कौन से हैं, इन चीज़ों को एनालाइज करना, कंपनी के मेंबर कितने मेंबर हैं, किस तरीके से उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है, कितने परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन करा है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, किस तरीके से रजिस्टर करा है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन से डिसीजन लिए हैं, तो ये सारी, और मैनेजमेंट वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है, और कौन कौन से अवार्ड्स कितने उनको क्लासीफाई करे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर रजिस्टर करेगा और प्रॉपरली क्लासीफाई करेगा। तो इसी को ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्टर। स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्टर में हम लोग क्या देखेंगे, द ऑडिटर हैज़ टू क्लासीफाई दैट वेदर दे हैव मेकिंग एन ऑडिटिंग। तो ऑडिटर जब यानी कि हम कंपनी को कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर रहे हैं, तो ऑडिटर ये चीज़ें देखेगा कि ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कब रजिस्टर हुई है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इस एरिया के अंदर कब रजिस्टर हुई है। जब हम लोग ऑडिटिंग करते हैं तो ऑडिटर ये फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग को एनालाइज करता है। ड्यूरिंग एन ऑडिटिंग इफ़ अगर ऑडिटर कोई भी चीज़ इरेगुलरिटी फाइंड आउट करता है कि हाँ कि कब रजिस्टर हुई थी, कि गलत तरीके से हुई है, सही तरीके से हुई है, तो ये अगर कोई फाइंड आउट करता है तो ऑडिटर रजिस्ट्रेशन के अंडर एक अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है कि हाँ कि ये
ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाय लॉस रजिस्टर नहीं हुई है, पर्टिकुलर डेट पे 30 डेज पे रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो इसी के लिए ऑडिटर एक स्पेशल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है टू रजिस्टर द पर्टिकुलर रिसिप ऑफ पेमेंट्स, रिसिप ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो पर्सनल प्रोफेशनलिंग ऑफ कमिटी ट्रांजेक्शन. सो सारे ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करने के, सारी कम्युनिटी के वर्क एनालाइज करने के लिए द ऑडिटर शुड प्रिपेयर अ स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्टर द स्पेसिफिक आइटम्स or cooperative society, or in case of urban cooperative banks will have not properly registered, so the cooperative society have to classify the many things which have been considered within sources. Okay, so the next last point of special features of cooperative society will be discussion of draft audit report with management committee. Whether after completion of audit, जब हम ऑडिट को कंप्लीट करते हैं ऑडिटिंग को, तो अगर ऑडिटर कोई माइनर मतलब छोटी सी मिस्टेक एंड इरेगुलरिटी फाइंड आउट करता है, तो उसको ऑडिटर डायरेक्टली सेटल कर देता है अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू, अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के थ्रू और रिसोर्सेज पॉलिसी के थ्रू, कि हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू ही वो इन सारी चीज़ों को चेंज और इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज चेंज करने के लिए और डिस्कस करेगा कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत. तो ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या रहता है, जब ऑडिटर कोई भी यानी कि इरेगुलरिटी फाइंड आउट करता है तो उस रिपोर्ट को ड्राफ्ट रिपोर्ट करता है, तो उसमें वो क्या डिस्कस करता है कि मैनेजमेंट अथॉरिटी से डिस्कस करता है कि ये थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी फाइंड आउट हो रही है, कि मिस्टेकन फाइंड आउट हो रही है ऑडिट करने में, कि हाँ ये सारी चीज़ें ये लॉस के अंडर ये फ्रॉड फाइंड आउट हो रहा है. तो ये ऑडिटर ये मैटर्स ये प्रॉपर पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है. बट ड्राफ्ट रिपोर्ट क्या रहता है कि हम प्रॉपरली सबमिट नहीं करते हैं और टू द मैनेजमेंट अथॉरिटी. ड्राफ्ट रिपोर्ट में जैसे कोई भी एक आधा पॉइंट हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, तो उसके पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट में सारे कंटेंट मेंशन करके मैनेजमेंट अथॉरिटी को हम शो करते हैं. अगर कोई माइनर मिस्टेक रह जाती है तो उसके कंपनी की पॉलिसी के टूवर्ड्स उस मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं प्रॉपरली और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. फिर डायरेक्टली उस मिस्टेकन को फाइंड आउट करने के बाद, उसको रिकवर करने के बाद फाइनली ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है विद द डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट कमिटी. तो देन ऑडिट रिपोर्ट उसके बाद ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद डिस्कस करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट होती है. ओके, सो नाउ वी हैव दैट काइंड ऑफ पॉइंट स्पेशल फीचर्स एंड ऑडिटिंग. जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की करते हैं तो ये स्पेशल एक्सपेक्ट पे हमें फीचर्स पे ध्यान देना रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जब हम ऑडिटिंग करते हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटी की. सो दीज आर द 10 पॉइंट्स ऑफ special features of cooperative society. First will be examination of overdue debt, second overdue debt interest, third certification of bad debt, fourth valuation of assets and liability, fifth adherence to cooperative principle, sixth observation of the provisions of the act and rules, seven verification of members register and examination of their passbook, eight audit classification of society, sixth, ninth, special report to the register, 10th, last point, discussion of draft audit report with management committee. So these are the special features of cooperative society. So the next will be main concept, appointment of cooperative society. Appointment of cooperative society. First I will read the concept. The appointment of an auditor is done by the register of cooperative society. जब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जब हम अपॉइंट करते हैं कोई भी ऑडिटर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वो किसके अंडरगत अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ रजिस्टर बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत अपॉइंटमेंट होगी कोऑपरेट ऑडिटर की. द अपॉइंटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज़ डन बाय रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होगी
और उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो इसी के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन होगी प्रॉपरली और ऑडिटर कंडक्ट करेगा ऑन हीज बिहाफ, रजिस्टर करेगा अपना नेम इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी ऑडिट फीस है, तो द ऑडिट फी इज़ पेड, जो ऑडिटर की सैलरीज है, पेमेंट्स है, जो वो ऑडिटिंग करता है, तो इसकी जब वो ऑडिटिंग करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो जो भी उसकी सैलरी होगी, फीस रहेगी, वो कौन पेड करेगी? द कोऑपरेटिव सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एज पर द स्टैट्यूटरी स्केल ऑफ फीस। तो किसके अंतर्गत रहेगा? स्टैट्यूटरी स्केल के टूवर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी दे हैव बीन अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसकी जो भी सैलरी रहेगी, ऑडिट फीस रहेगी, जब वो ऑडिटिंग करता है तो उसकी जो भी सैलरी ऑडिटर की रहेगी, फीस रहेगी, वो अकॉर्डिंग रजिस्टर किसके अंतर्गत रहेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के, विद द स्टैट्यूटरी पे स्केल। उन्हें स्टैट्यूटरी पे स्केल पे जो भी कैटेगरी, जो डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो पर्टिकुलर सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट कर रही है ऑडिटर को, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही उन्हें अपॉइंट करती है, और जो पे स्केल है वो स्टैट्यूटरी रहेगा। उनका जो पेमेंट ऑडिटर को देंगे, तो वो पेमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहेगा, और उनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब ऑडिटर उनकी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कोई भी कैटेगरी की ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो डायरेक्टली वो ऑडिट रिपोर्ट रजिस्टर करेगा और उसकी एक कॉपी सबमिट करेगा टू द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी। ओके, सो ऑडिटर कभी भी अपॉइंट होता है कभी भी किसी भी कंपनी, सोसाइटी के लिए, क्यों? ताकि वो उनकी ऑडिटिंग कर सके। ओके, तो अगर ऑडिटर कंपनी के अंतर्गत अपॉइंट हो रहा है तो कंपनी सोसाइटी के एक्ट के तहत होगा, और अगर पर्टिकुलर ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अपॉइंटेड हो रहा है तो वो पर्टिकुलरली अपना नेम रजिस्टर करेगा एज एन कोऑपरेटिव सोसाइटी के टूवर्ड्स रजिस्टर करेगा, और जो भी उनका सैलरी रहेगी वो डायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें देगी। और ऑडिटर का काम क्या रहेगा कि वो ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करे और डायरेक्टली रजिस्टर करे, और एक कॉपी कंपनी को और सोसाइटी को, जिस सोसाइटी की वो ऑडिटिंग कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली सेंड करे। सो दिस आर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट, cooperative audit will be registered. So the registration of cooperative society is prepare a panel of qualified auditor. अगर हम कोई भी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो वो पर्सन कौन सा रहना चाहिए? मस्ट बी क्वालिफाइड होना चाहिए और चार्टेड अकाउंटेंट। और कोई भी ऑडिटर हम अपॉइंट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो वो ऑडिटर क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए, उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मस्ट भी चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। क्वालिफाइड और चार्टेड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड ऑडिटर किस तरीके से हम जज करते हैं, उसे एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, और पास आउट होना, अगर वो ऑडिटिंग के लिए है तो वो पास आउट क्या करना चाहिए? GDCA एग्जामिनेशन। तो ये मेन मोटिव रहता है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट कर रही है ऑडिटर को, तो वो इन तीन चीज़ों पे फोकस करेगी कि ऑडिटर अगर वो अपॉइंट कर रहे हैं तो वो ऑडिटर क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, उसे पर्टिकुलरली नॉलेज होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए, और प्रोफेशनली वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, ताकि चार्टेड अकाउंटेंट किसको क्या है, इसके सारी ऑडिटिंग की नॉलेज रहती है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की नॉलेज रहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, और उसके पास हैविंग डिग्री ऑफ GDCA क्लियर होना चाहिए एग्जामिनेशन। तो ये इसी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ बीन अपॉइंटेड दैट पर्सन टू अपॉइंटेड फॉर एन कन्फर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उनको अपॉइंट करेगी। ओनली क्वालिफाइड ऑडिटर विल बी अपॉइंट एज एन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर। ओनली क्वालिफाइड पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज एन मेंबर और एज एन ऑडिटर of cooperative society, and they have to maintain
all the rules and regulation which have been regulated by the cooperative society, and they have to submit the audit report of cooperative society in terms of cooperative society act. Okay, so these are the appointment procedure of cooperative society, whether they appointed an auditor of cooperative society. So these are the procedure for appointment of co-auditor in a cooperative society. So the next will be rights and duties of cooperative society. So what are the rights and duties of cooperative society, we have discussed in next lecture. So in this rights there has been 8 points, 8 right of particularly cooperative auditor. तो ऑडिटर की राइट्स क्या हैं कि अगर जब वो काम करता है, ऑडिटर की राइट क्या है, 10 राइट्स हैं कि हाँ उनकी राइट्स हैं कि इसके अंतर्गत वो काम करेंगे, अपना ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोअप करेंगे. सो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.